কাড়া গরু যেগুলা খোটা ছিল ওগুলা খোলা হয়েছে না বাঁধা আছে? কারণ ঢেক ঢেক ধরলে আনা হয়েছে তো ওগুলার দিকে একটু খেয়াল রাখবে, আমাদেরকে নাই খেয়াল রাখলেও চলবে। আর এই যে লোকগুলো আনেছে ওদেরকে প্রথমে আমি সাবাসি জানাই। আর যে লোকগুলা ঢোল মাদলটা ডাহিয়ে বাজাইলো ওরাকেও বেজা বেজায় সাবাসি জানাই। আর যারা গান গাইলো ওদেরকে সাবাসি জানাই। কারণ এই লোকগুলো আছে বলে আমাদের সংস্কৃতি বাঁচে আছে, আমরা আছি বলে নাই। কিন্তু এই লোকগুলো আছে বলে সংস্কৃতিটা বাঁচে আছে, আমার জন্য নাই বন্ধু। এই লোকগুলোর কথা আগে বলতে হবে। তো ধন্যবাদ, ভাষণ বেশি দিব নাই। আমাদের মঞ্চে আছেন মূলখুঁটা মূলমন্তা অজিতদা, আর আসে পৌঁছেছেন বেজায় বেজায় সাবাস আমাদের ডুমরির বিধায়ক জয়রাম ভাই, আর আছে আমাদের অনুপদা, আছে সবাই মানগর বুধঘর সবাই আছেন। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জোহার গড় জানাই। আর যারা সামনে বসে আছেন ঢেক ঢেক ধরলে আসেছেন, আগের বছরও আসেছিলেন, এই বছরও আসেছেন, আর আগামী বছর আসবেন নাকি? আশা হবে তো? আর হিরে আর কুড়িবি কর কুড়মালি না যায় ভুলি যে বাবু। আর হিরে আর কুড়িবি কর কুড়মালি না যায় ভুলি যে বাবু। জিয়াই রাখো আপনি দেগা চারো রে। আর কুড়বি হে কি নিশার না ধরম, কুড়বি হে কি নিশার না ধরম। আর বান্দনা দিতা টুসু করম। আর বাঁচাই রাখো পরবতী হার, আর বাঁচাই রাখো পরবতী হার। তাহলে পরম তিহার বাঁচায় রাখতে হবে, সংস্কৃতি বাঁচায় রাখতে হবে, নেগাচার বাঁচায় রাখতে হবে। এবং আমরা যারা এখানে মঞ্চে আছি, যারা নিচে আছি, যারা উদিকে আছি, তারা এদিকে আছি, সব লোকগুলোর একটাই কথা যে আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচায় রাখতে হবে, আমাদের পরিচিতিকে বাঁচায় রাখতে হবে, আমাদের নেগাচারকে বাঁচায় রাখতে হবে। আশা করি আমার সঙ্গে দ্বিমত হবে নাই। আর যারা আজকে আছেন প্রত্যেকেই সমাজের গর্ব, এদের জন্য আমরা গর্ব করি। গর্ব করার মতো লোকগুলো আমাদের এই মঞ্চে বসে আছে। তো আমরা আছি, আমি আছি বন্ধু। স্কুলে যেটুকু আসতে দেরি হইলো, চাকরিটা তো করতে হবে, সরকার তো চাকরিটা নিয়ে নিয়েছিল, ঘুরে আবার ছাড়াই নিয়েছি, দম আছে বলে। হ্যাঁ চলো, তো বেশি কিছু বলবো নাই। যাদের কথা শোনার জন্য আপনারা অপেক্ষা করছেন তারা আসবে। তো আমি প্রত্যেককে এই বিতল বন্দনার শুভেচ্ছা শুভকামনা জানাই। আর আমাদের অভিভাবক মূলখুঁটা মূলমন্তা আছে, আমাদের সমাজ আন্দোলন যেরকম চলছে চলবে। আর জয়রাম ভাই আছে, তার কথাও তার জন্য একটু বলে দিই যে কুর্মী সমাজ আমরা তোমার সঙ্গে আছি ভাই। তুমি ভবিষ্যতে আগায় চলো, আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত লাভ করো। তবে একটাই কথা যে জয়রাম মা তো শুধু কুর্মী জাতি নয়, সমস্ত জাতি সমুদায়ের জন্য জরুরি আছে। শুধু ঝাড়খণ্ড নয়, গোটা দেশের জন্য এরকম একটা ছাড়ার দরকার আছে আমি মনে করি। তো আজকে সেই জায়গায় জয়রাম ভাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে শুধুমাত্র কোনো যেটা বিবাদের উৎপন্ন হচ্ছে সেই জায়গায় নাই, যে তুমি তোমার আগায় চলো, আমরা সাথ দিব। এবং ভবিষ্যতে তুমি পটেনশিয়াল লিডারশিপ আছো, ভবিষ্যতে যে ঝাড়খণ্ডে যে পলিটিক্যাল অপরচুনিটি যে আছে, তোমাকে ভবিষ্যতে ঝাড়খণ্ডের সর্বোত্তম নেতা হতে হবে, সিএম হতে হবে। সেদিনে কিন্তু কুর্মীর তো রাজেশ দাদাকে বেজায় বেজায় সাবাস আর জোহার। তো এখন আমরা আমাদের মূল খুঁটি মূল মানতা অজিত বাবুর কাছ থেকে আমাদের মেলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে দু চার কথা জানিয়ে নেব। তো অজিত বাবুকে তো একটু ভুলচুক হয়েছে, যাই হোক এখন আমরা আপনাদের সবার প্রিয় সেই টাইগার জয়রাম দাদাকে আপনাদের সামনে দু চার কথা আমাদের সংস্কৃতি কালচার পরম্পরা বা সমস্ত স্বজাতির মানুষের জন্য যে বার্তা, যে মানুষের কিভাবে উন্নতি হবে, কিভাবে আমরা আগায় যেতে পারবো সেই সম্বন্ধে সমস্ত, এটা জাতি নির্বিশেষে শুধু একটা জাতির জন্য নয়। তো দাদাকে আমি রিকোয়েস্ট রাখবো সমস্ত স্বজাতির মানুষের জন্য যেন আজ এই মঞ্চ থেকে দু চার কথা বলে। তো দাদাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই তো তুলিগড়া
সামনে উপস্থিত দাদা জয়রাম মাহাতো। যা তো একটা তো যাবো চলো हेलो आज जंगल महल झारग्रामेर माटिर যতজন আসছে সবাইকে জয় গ্রাম जोहार। थोड़ा सा भाषा में चूंकि हमारा भाषा तोरानिक भाषा तुको भिन्न है तो मैं कोशिश करवा कि हिंदी टाइम को अल्प करवा ताकि मोके तोहरा के नियर बांग्ला आवे ना। तो आज सोहराय परब कड़ा खुटा कर शुभ अवसर इस कार्यक्रम में अटल जुटल तमाम मायरा मसीरा दीदीरा काकीरा दादारा काकारा जेठारा सबाई के जोहार। हमारे मंचे विराजमान आदिवासी कुर्मी समाजेर अगुवा आदिवासी कुर्मी समाजेर समस्त पदाधिकारी और विभिन्न समाजेर যত লোক আসছে সবাইকে जोहार। और विशेषकर युवा पीढ़ी नौजवानों को हमारा क्रांतिकारी इनकलाबी जोहार। क्या जंगल महल की इस पावन धरती में काड़ा खुटा भरत खुटा के इस कार्यक्रम में हम सभी आए हैं। ये पर्व त्योहार हमारी परंपरा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमारी भाषा में जहाँ से हम चल के आते हैं धनबाद बोकारो जिला गिरिडीह का जिला वहाँ एक कहावत है कि जय मानुषक भाषा हरा से मानुषक दिशा है। यानी जिस इंसान की भाषा परंपरा संस्कृति समाप्त हो जाती है उस इंसान का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। आज आप जितने भी नौजवान साथी हैं आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं एक बात हमेशा हमको याद करके बताइएगा कि आपने कौवा को भी देखा है। आपने की बोले कौवा के बोलते भाई ना क्या आपने कभी कौवा के गले में या पांव में बेड़ी देखा है? क्या उसे कभी पिंजरे में देखा है? क्या उसे कभी किसी रस्सी में या किसी भी प्रकार से बंधन में देखा है? नहीं देखा है। आपने क्यों कौवा के बंधन देखे छीना क्यों नहीं देखा है? न कौवा भले काला होता है देखने में भले आपको बुरा लगे देखने में बदसूरत लगे लेकिन जो वो काव 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 चिल्लाता है काव काव जो करता है ना उसकी मातृभाषा। और जो मातृभाषा बोलते हैं मातृभाषा ही नहीं हमारी मातृभाषा हमारी परंपरा हमारी संस्कृति जो मातृभाषा बोलते हैं वो कभी गुलाम नहीं होते उन्हें कभी कोई गुलाम नहीं बनाता। आपने सुगा क्यों देखे थी? आपने सुगा ही बोली ना। सुगा तोता पैरट देखने में बड़ा सुंदर होता है पंख भी सुंदर होता है चोंच भी सुंदर होता है और आवाज भी सुंदर होता है लेकिन आपने क्या देखा होगा कि लोग उसे पकड़ते हैं पहले उसके की बोली डंका गाना सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं पांव में भी जरूरत पड़े तो एक दो उसका तोड़ देते हैं और उसको भर के कहाँ रखते हैं लोहे के पिंजरे में। भले उसको खाने के लिए चना दे मूंगफली दे लेकिन उसको गुलाम बना के रखते कि नहीं? क्योंकि जो मिट्टू जिसे कोई तोता कहता है कोई सुगा कहता है कोई पैरट कहता है भले वो दिखने में सुंदर है हरा है चोंच लाल है खाता भी बढ़िया बढ़िया है लेकिन वो भाषा का नकल करता है
टें 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 उसकी भाषा नहीं है। वो भाषा का नकल करता है, वो किसी और की भाषा को बोलने का प्रयास करता है, इसीलिए लोग उसे गुलाम बना के रखते हैं। तो इसलिए एक बात तय कीजिए कि आपको आजाद रहना है या गुलाम रहना है। तो भैया अगर आजाद रहना है तो आपको उस कौवे की तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके साथ आपको जीना होगा। तो क्या ये नौजवान पीढ़ी जो हमारा आने वाला भविष्य है, क्या वो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा को बचाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेंगे? क्या आप अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, अपने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेते हैं? आज आपको ये प्रण लेना होगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग दिशा से हट जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज नौजवान पीढ़ी को विशेषकर आपको ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि आज हमारी पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है। उस पहचान को, उस परंपरा को, उस भाषा, उस संस्कृति की विरासत को, उसे सुरक्षित रखना है। आज हमें ये प्रण लेना होगा। दादा बेंगल में बात कीजिए। ঠিক আছে দাদা, একটু বসুন। নমস্কার নমস্কার। তুমি নিয়েছি না? আমি বুঝতে পারি তুমি বসুন। बेंगल में बात कीजिए। आज ये प्रण लेने की आवश्यकता है, और विशेषकर जंगल महल के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों, मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है आपको यहाँ देखकर। दुख हमें झारखंड के लोगों को भी देखकर होता है, लेकिन आपके लिए दुख थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि जैसा भी सही जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, सरायकेला वालों को झारखंड मिला, धनबाद वालों को झारखंड मिला, बोकारो वालों को झारखंड मिला, हजारीबाग गिरिडीह को झारखंड मिला, रामगढ़ को झारखंड मिला, रांची को झारखंड मिला, लेकिन झारखंड बनने का हकदार और झारखंड में शामिल होने का हकदार पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा के लोग भी रखते थे। आज बिल्कुल इस बात का अफसोस आपकी आंखों में भी झलक रहा है और हमें भी झलकता है। जो आंदोलन कोयलांचल में था, जो आंदोलन लोहांचल में था, कोयलांचल यानी हमारा जो कोलियरी कोयला का क्षेत्र है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग का हिस्सा, और लोहांचल यानी जमशेदपुर का क्षेत्र, वही आंदोलन आपके जंगल महल में भी था। जो त्याग कोयलांचल वालों ने किया था, जो त्याग लोहांचल वालों ने किया था, वही त्याग जंगल महल वालों ने भी किया था। लेकिन आज कोयलांचल वालों को, लोहांचल वालों को कहने के लिए झारखंड मिला, हालांकि अधिकार वहां भी उनको नहीं है। आज भी वहां उनको मजदूरी के लिए तरसना पड़ता है। उनकी जमीनों में कोयला, उनकी जमीनों में अभ्रक, उनकी जमीनों में लोहा, उनकी जमीनों में लगभग 80 प्रकार के मिनरल्स पाए गए हैं, लेकिन आज उन्हें नौकरी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके पास कहने के लिए है, আমাদের কাছে এই শব্দ আছে कि हमरा झारखंड, हमरा पवाली झारखंड, लेकिन आपके पास वह भी कहने को नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने जो आंदोलन किया था, जो संघर्ष किया था, उसके बदले आप उस झारखंड का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो इसलिए नई पीढ़ी को यह प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों ने आंदोलन को जहां लाकर छोड़ा है, वो विरासत जो हमें देकर गए हैं, उस विरासत को यहाँ से फिर से हमें लेकर जाना होगा। क्या आप तैयार हैं? कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। क्या आप तैयार हैं? और देखिए नौजवानों, मेरे भाइयों, हम जिस रास्ते में चलने जा रहे हैं, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, मानते हैं आसान नहीं है।
এই কাজটা সরল नहीं আছে किंतु असंभव भी नहीं है। मानते हैं वो काम आसान नहीं है, वो काम सरल नहीं है, लेकिन वो असंभव भी नहीं है। आज हमारे समाज का जो मांग है शेड्यूल ट्राइब इंक्लूजन का, आज ये लड़ाई भी, आज ये मांग भी बरसों नहीं दशकों पुरानी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, आज चाहे सामाजिक आंदोलन हो या किसी प्रकार का आंदोलन हो, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, शायद वो कल नहीं होंगे। आज हम लोग भी कल नहीं होंगे, लेकिन आपका समाज, हमारा ये बृहद समाज जो हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति से परिपूर्ण है, वो समाज रहेगा। इसलिए आपको उस बागडोर को, उस विरासत को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। और आज जब भी आप किसी आंदोलन के लिए जाते हैं, जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, आपको त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग का आपको मंजिल नहीं मिलेगा। आज आपको त्याग करना होगा। आप कहेंगे कि हमें भोग का रास्ता भी चुनना है, हमें ऐसो आराम का भी रास्ता चुनना है, और हमें मंजिल की ओर भी जाना है, हमें अपने सपनों को भी साकार करना है, तो संभव नहीं, आपको त्याग करना होगा। आज का समय त्याग का है, और जो नौजवान त्यागी बनकर इस रास्ते में आएंगे, तभी हमारा समाज उत्थान की ओर जाएगा। इसलिए इस पीढ़ी को तो त्यागी बनना होगा। हमारे जिले में एक वीर क्रांति दूत हुआ करते थे, शहीद शक्तिनाथ महतो। वो अक्सर कहा करते थे कि एक पीढ़ी को जेल जाना होगा, दूसरी पीढ़ी को गोली खानी होगी, तभी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हमारी एक पीढ़ी जिसमें शहीद शक्तिनाथ महतो स्वयं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक पीढ़ी को गोली खाना होगा, और शहीद शक्तिनाथ महतो ने खुद गोली खाई। उनके साथ निर्मल दादा ने गोली खाया। ऐसे अनगिनत, गिनती हम नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों ने गोली खाया। आपका जो समय है कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, ये शायद जेल की स्थिति वाला समय है। और आपने देखा पुरुलिया के जिले में, घाटशिला में हमारे 51 लोगों को जेल जाना भी पड़ा। लेकिन उन विषयों से, उन घटनाक्रम से आपको कतराना नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी व्यक्तिगत नहीं है। आपकी लड़ाई केवल आपके लिए नहीं है, आपकी लड़ाई केवल आपके घर आंगन तक सीमित नहीं है। आपकी लड़ाई कई हजारों साल पहले जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। इसलिए आज आपको त्यागी बनना होगा। इसलिए आज आपको त्यागी बनना होगा। और एक बात याद रखिएगा, जो संघर्ष को चुनते हैं वही सफलता के करीब जाते हैं। आज का समय संघर्षों का समय है मेरे भाइयों। और आप, ऐसा नहीं है कि संघर्ष से सफलता नहीं मिलती है। आप इस मंच में खड़े इस नौजवान को, जो आपके भाई जैसा है, आप देख सकते हैं। आपके बीच जो मैं खड़ा हूं, आप हमें देख सकते हैं। आज से 2-2.5 साल पहले बड़ी मुश्किल से हमारे गांव के आमने सामने के लोग हमें जानते थे। आज महज 2 सालों में झारखंड की राजनीति में हमने वो छाप छोड़ा है कि बाकी लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि यहां तक का सफर तय कैसे हुआ। जब हम पहली बार विधायक बनने के बाद जिला स्तर की बैठकों में भाग लेने लगे, तो बैठक समाप्त होने के बाद जो IAS IPS होते थे, बोलते थे विधायक जी 2 मिनट का समय दीजिए, आपसे अकेले में बात करना है। मैंने ठीक है। और जिले के DC, जिले के SP एक ही लाइन पूछते थे, हुई जयराम महतो। ये जयराम महतो कौन है, कैसे यहां तक? क्योंकि हमारे झारखंड में जो 81 विधानसभा की सीटें हैं,
जिनमें 80 सीटों में इंडिया और एनडीए है, एक में जयराम महतो। इसलिए उनका सवाल था कि भाई कौन है और कैसे आप यहां तक आए। राजनीति का मतलब था पैसों की चकाचौंध दुनिया से कोई आया है, राजनीति का मतलब है परिवारवाद से कोई आया है, राजा के घर से कोई चल के आया है, लेकिन साधारण सा जयराम महतो यहाँ कैसे आया। हमने कहा सर हम भी कहते कि उपायुक्त महोदय हमको भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हम यहाँ तक कैसे आए। हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग विधायक बन के आएंगे, हमने भी नहीं सोचा था, कैसे सोचेंगे। एक साधारण परिवार से आते हैं, मैंने कहा ना त्याग करना होगा। आज विधायक बनने के बाद भी, विधायक यानी बहुत बड़ा चीज होता है, विधायक यानी विधायिका जो नियम कानून राज्य और देश के लिए बनाते हैं, लेकिन जब भी हम किसी काम को लेकर बैठते हैं, आज आप जाके हमारे घर में देखिएगा, अगर हमारे घर में अगर आप कभी जाएंगे, आप जाते ही आप निमंत्रण देने गए थे, हम अपने घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम हैं विधायक, लेकिन मेरा घर एकदम बहुत साधारण घर है, और हम अपने दोस्त के घर में इसलिए रहते हैं कि 4 गो आदमी आए, बस उसको बैठने उठने कहाँ बोलेंगे। आप सोच नहीं सकते हम वहां से आए हैं कि 4 लोग अगर हमसे मिलने चले आए तो हम उनको बैठने कहाँ बोलेंगे, कहाँ बैठाएंगे। 10 लोग आ गए उठ के तो कहाँ बैठने बोलेंगे कि विधायक जी का घर में आए हैं। आज हमारी माँ बीमार है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, लेकिन हम अपने घर में नहीं रखे हैं, बस इसलिए कि हमारे घर में बाथरूम तक नहीं है। तो हमने उस परिस्थिति से यहाँ तक का सफर तय किया है मेरे भाइयों। इसलिए संघर्ष, आपका त्याग, आपकी तपस्या आपको मंजिल की ओर पहुंचाएगी, इसके लिए आप तैयार रहें। और चूंकि ये भरत खूटा का कार्यक्रम है, काला खूटा, तो हम जो भी त्योहार मनाते हैं, जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं, उसका एक संदेश होता है। আমাদের যত পরব আছে, যত त्योहार আছে, ওদের ভিতরে একটা মেসেজ আছে, সন্দেশ আছে, কি আর মানে কি, এই কাজটা আমাদের পূর্বজ কি জন্য করেছে, এই কাজটা কেনে, এই বরত খুঁটা কেনে, এই কাড়া খুঁটা কেনে, এই টুসু কেনে, এই করম কেনে, জিতিয়া পরব কেনে, এই কোনো না কোনো ওদের ভিতরে একটা মেসেজ আছে। তো বরত খুঁটার মানে কি সবাই জানি কি আমরা चासा लोग माने की न, सावन महीना का जो समय होता है हम वो खेती बाड़ी करते हैं, धान लगाते हैं, हाथ जोतते हैं, इधर भी वही टाइम होता है ना। अब मार्च में नहीं ना करते हैं, मैं 2-4 को खेत देखे थे मार्च तरफ, यानी हम सावन महीना, जिसे हम लोग अंग्रेजी के कैलेंडर में जुलाई अगस्त के आसपास कहेंगे, यानी उस समय हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं और खेत में धान लगाते हैं, और मूल हमारा संबंध धान से है। उसके बाद का जो समय होता है सितंबर आधा, अक्टूबर पूरा और थोड़ा सा नवंबर, यानी 1.5-2 महीना क्या होता है कि हमारा जो बरद है, काड़ा है, उसको रिलैक्स हो जाता है। तो भाई रिलैक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस त्योहार में उसको पहले तेल लगाते हैं। हमरा की कोरी वाक्य तेल मखाए कहे ना, तेल किसको मखाया जाता है, लगाया जाता है, जो थका हारा होता है। आज के यदि हमारे घरे यदि बाड़ी कोनो पहुना आसे, कोनो कुटुम आसे, तो हम उनको क्या करते हैं कि बैठिए थोड़ा तेल लगा देते हैं, भाई आप बहुत दूर थक के आए हैं। तो तेल किसको लगाया जाता है, जो थका होता है। तो हमारा जो बरद है, काड़ा है, ये सावन महीना में इसको जोतते जोतते नारते नारते ये थोड़ा थका है, अब इसको तेल लगा के बोल रहे भाई थोड़ा सा तुम अब तंदुरुस्त हो जाओ, तुम थोड़ा सा फिट फाट हो जाओ। कहे ना, फिर अब आ रहा है कार्तिक और अगन का महीना कि धान काटना है और फिर तुमको गाड़ा गाड़ी में लोड करके घर पहुंचाना है। अब धान काटने के बाद फिर बरत गाड़ी में लोड करके घर भी पहुंचाना है और माड़ा भी गुरहना है, धान खिजाना भी है। तो इसीलिए इसको तेल लगाते हैं कि तुम अब तुमको फिर से तैयार हो जाओ। यही हम एटाई ना जिज्ञासा करছি कि भाई কোনো না কোনো আমাদের त्योहार, আমাদের পরব মেসেজ আছে। तो मैसेज की ना, हम आपको तेल लगा दिया, फिट फाट, और अभी खूंटा भी कहा कि उसको गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम और गुस्सा हो जाओ, तुम ही रागे, तुम ही रिझे। कहे ना, इसी गुस्सा के साथ मेरा खेत से धान उठाना, हम लोग का खेत भाई सब काला खेत, आसान नहीं है। कुड़मीर खेत से धान उठा के लाना आसान है कि
तो वही उसको गुस्सा दिलाते हैं, सूप से मांगर बजा के ऐसे मन उसको हलकार के कि भाई हाँ तुम गुस्सा करो, हम चाहते हैं तुम गुस्सा करो, और उस गुस्सा के बदले जब हम धान खेत में तुमको नारेंगे फिर उठा के उसको बाहर लेके आना है। तो ये है हमारे बलद खुटा करने का हम पीछे हमारे पूर्वजों का मतलब कि भले तेल लगा के तुमको तरोताजा करेंगे, क्या कि सावन महीना के बाद तुम कुछ काम नहीं किया है, तुम आराम से घर में बैठा है और सावन महीना के बाद हरा हरा घास मिलता है और जितना बढ़िया बढ़िया खाना खाने पर थोड़ा आदमी आलसी हो जाता है, तो इन लोग भी आलसी हो गया थोड़ा। तो इसीलिए अब फिर से आ गया है टाइम कार्तिक महीना का, अगहन महीना का। अब इन लोग को हम लोग खेत में नारेंगे और फिर खेत से बीड़ा उठाएंगे। बीड़ा बोली ना अपनी, की बोली ना अपनी, बीड़ा बोली। एटा हमारे काला खुटा बोरत खुटा माने। तो इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर हैं बहुत महान है। उन महान परंपराओं को, उन महान कल्चर्स को हमें जिंदा रखना है, हमें सुरक्षित रखना है। और कैसे रखना है ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा ड्यूटी कि हम उसको कैसे ठीक से रखें। इसलिए आज আমি সবাইকে এটা শুধাতে যাই कि নিজের परंपरा, নিজের संस्कृति, নিজের भाखीचारी, নিজের नेगाचारी এটাকে सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अभी जो सामाजिक स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में अपना योगदान देना, अपनी भूमिका देना यह भी हमारा कर्तव्य है। और ये तो आप जानते होंगे कि हमने 1 साल की मात्र हमारा पॉलिटिकल टाइम कितना, 1 साल का, यही अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। रिजल्ट हमारा आया था 23 तारीख को, यानी 23 नवंबर को हम विधायक एमएलए चुने गए हैं, यानी अभी हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है। और आप इस 1 साल में उठा कर देखिए कि आज हमारी परंपरा संस्कृति की बातों को, हमारी चीजों को जितना मैंने विधानसभा में उठाया है बाकी कोई लीडर दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। हमारे भाखी की कुड़माली। तो बताइए आज हमको लगता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में मिला के, पता नहीं उड़ीसा में शायद अभी एक भी नहीं है, यानी हमको लगता है झारखंड, बंगाल और असम में एक है, शायद 15 विधायक हमारे हैं। और अगर सांसद की बात करें तो एक राज्यसभा और 3 लोकसभा सांसद अभी हमारे टाइम, आज के टाइम में, यानी 4 एमपी और 15 एमएलए अभी के टाइम। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कुड़माली भाषा में प्रतिज्ञा लेने वाला एकमात्र शख्स हम है। यानी ये कितना ताज्जुब का बात है कि हमारे लोग आज कितने बरस हो गए, आज कोई 1952 से इलेक्शन जीत रहा है, कोई 75 से जीत रहा है, कोई 95 से जीत रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे जो भाखी कुड़माली एकटाও एमपी एमएलए নাই যে প্রতিজ্ঞা করেছে আমি প্রথম গোটা হিন্দুস্তানে আমি প্রথম যে কুড়মালি ভাখি প্রতিজ্ঞা করেছি। গোটা ভারতবর্ষে, গোটা ভারত খণ্ডে আমি প্রথম এমএলএ আর এমপি, যে বলুন এমপি এমএলএ, প্রথম আমি এমএলএ যে আমাদের নিজের মাতৃভাষী কুড়মালি प्रतिज्ञा করেছি। और अभी जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है जिसको हमने समर्थन दिया, आपको मालूम है कि हमने अपने राजनीतिक कैरियर को दांव में लगाया है। क्योंकि हम नया विधायक हैं, बाकी लोगों के पास एक वोट बैंक है, दे हैव देयर वोट बैंक्स बिकॉज दे आर फ्रॉम एनडीए इन इंडिया। कोई फर्क नहीं कैंडिडेट कौन होगा, हु विल बी द कैंडिडेट। आप इंडिया से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आप एनडीए से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आई एम इंडिपेंडेंट न्यू कमर पार्टी। हमारे झारखंड में भी क्या सेफ है, 81 में 56 इंडिया के पास, 24
एनडीए के पास 56, 24, 80 हम अकेले हैं। यानी हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं, हमारे पास कोई समीकरण नहीं। और हमने क्या कहा कि पार्टी बनती है, बिगड़ती है। कोई आज बीजेपी में है, कल को तृणमूल में चला जाएगा। समाज आपका चिरंजीवी है, आप समाज के साथ रहिए। किसी एमपी एमएलए में इतना ताकत आपने देखा था क्या? हमने स्पष्ट कहा कि आप हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में आते हैं, अच्छी बात है। आप मेरी पार्टी के मीटिंग में आते, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज की मीटिंग में पहले जाइए। हमने एकमात्र भी एमएलए जिसने कहा था, जबकि आप भी जानते हैं 2029 में पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हम नया विधायक है, हमारे पास कोई समीकरण नहीं है। 2029 में हमारे क्या होगा, हमारे साथ हमारे राजनीतिक कैरियर का क्या होगा, हमें वो भी मालूम नहीं। लेकिन मुझे ये मालूम है, हम रहे या ना रहे, हम जिए या मरे, लेकिन समाज हमारा चिरंजीवी है। और फिलहाल वो शोषित है, वो वंचित है। अगर हम ममता बनर्जी के सरकार समाज से होते तो हम भी बोलते पहले अपना देखते हैं भाई। लेकिन हम मैं यदि ममता बनर्जी घरे गिदर छुआ रहता न तो टुकु सोचता न कि एते बड़ो लोग इतना बेस हमार समाजटा है, मोर समाजटा। किंतु आज के मैं एक शोषित वंचित समाजेर बेटा सोई खातिर मैं कहलो कि विधायक सांसद बादे सामाजिक स्थितिटा पहले भालो रहेक चाहिए, सामाजिक स्टेटसटा भालो रहेक चाहिए, सामाजिक पहचानटा भालो रहेक चाहिए, ओकर आइडेंटिटीटा भालो रहेक चाहिए। ए तोहरानी बुझे बारिया आई तोहरानी करो जंगल महले दोमे हमरा सामाजिक नेता हाथ की ना नहीं, कोई टक मुंह से बोली बाहर आइले, कोई टक कोनो कह पारला, कोनो कह पारला की एकटा कहि दे जितना कथा मैं कहलो मीडिया कह, भाषण कह, जे जितना उदाहरण मैं देलो, जितना मैं उदाहरण देलो, जितना मैं आज तक ले उदाहरण देलो कि ई भावे हमरा के हटाइल गेल, ई भावे हमरा के संगे इटा भेल, एकटा राजनीतिक पार्टी कोई के दिखाई दे काहे कि ओकरानिक माइंड से इटा है कि हमार परे हमार छोटा विधायक सांसद, हमार परे हमार बहुटी विधायक सांसद, लेकिन हमार उस समझता ना है। तो से खातिर आज क्या पारिया कि मैं अपन राजनीतिक जीवन अपन राजनीतिक कैरियर तक हम मैं दाएं लगाई के आज इटा कहलो कि भाई सामाजिक आंदोलन है, भालो बात है। सामाजिक जितना हमार पार्टी जुड़ल भाई गिला है, बहन गिला है, अपन समाज के समर्थन करा तखन हमार। तो से खातिर मैं तोरानी सोभिन के हटाए कहे चाहे कि भाई सोभिन भालो करी रहिया, सोभिन भालो करी रहिया। किना भेलै लाइटी खराब बेनाई गेल है की? अच्छा कोनो बात नहीं, कोनो व्यापार नहीं, लाइट बेनाई गेल की शांति रहे तक। अरे ठीक है, कोनो व्यापार नया है, ठीक है। और बेसी मैं समय लेबो नहीं काकि मौके फिर गिरिडीह यहाँ ले गिरिडीह जाते, गिरिडीह माने पारासनाथ तक डार नहीं कहले हमरा कहा सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर तो सीख शिखर तो सीखे माने की हाँ ऊंचा तो ऊंचा माने की पारासनाथ पहाड़ तो हम हुआ करे तो लागी हन हमरा कहावत है ना कि रकम है तनी हम याद नहीं कर पा रहे, तोरानी के याद है तो सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर सेटाई तो है कई छोटा नागपुर यानी हमरा कर एरिया टा हटाए है ना तो सेटाई तो हमरा के एरिया टा तो हमें और सीख ज्यादा सीख धरल ना सीख उच्चारण भेल है हाँ पारसनाथ का तो कहाँ से ही हमें आये और हमारे विधानसभा हटाए है। हालांकि हमारे घर भई गल धनबाद जिला, लेकिन जहाँ से हमें विधानसभा जीतो लायो उटा लगो गिरिडीह और गिरिडीह है पारसनाथ पहाड़ का तो हमके हिया से फिर पारसनाथ तक घोड़ा जाए बताए तो से खातिर ज्यादा समय ले बहन ना फिर घूरी गए बहन तोहरानी डाकबा तो घूरी के फिर आए बहन और एक जिनिस कह बहन कि लीडरशिप तो देख 2018 हमारे एक फोटो तोरानी देखे पारिया 2018 एक फोटो मोराबादी है रांची मोराबादी हमरा का आंदोलन हकले सामाजिक आंदोलन जकर में 5 लाख लोग गया और हमें हटे इसने भीड़े बैसल लिए
मसूद अली ना यार को हेटे जतना तोहरा नहीं है तो एकर माने लीडरशिप काकरो मोहताज नहीं है के लीडरशिप काकरो मोहताज नहीं है के लीडरशिप एगो प्लेटफॉर्म के दरकार है एगो अपॉर्चुनिटी के दरकार है तोहरा नहीं यहाँ लीडर लगा ये भीड़ में नतून लीडर है तोहरा नहीं लीडर लगा आज हमें के है कि आज हमें तो कोनो राजा घर नहीं है कि हमू 2018 যখন সমাজে पहिल बार हमें बड़ो आंदोलन भाग लिए गए हलियो रांची एरकम भिड़े हलियार साइड से एगो फोटो खिंचाए रहलो बड़का मंच होले मंचे बड़ा बड़ा लोग हला तखन झारखंड के जितना नेता मंत्री विधायक के मंच होला हमें हटे आज हेठे देखा 4टा 5टा 6टा साल परे हमें हिया आए तो तोहरानियो ये जे भिड़े वाला लगा और जौन दिन तोहनी भिड़े लगभा से दिन नतून नतून लीडरशिप बनी के बाहर है लीडरशिप के तो बाहर दरकार है लीडरशिप बाहर दरकार है ताकि आज समाज एक स्थिति है लीडरशिप का दरकार है सभी नतून पीढ़ी के नतून छवागिला के लीडरशिप करे दरकार है तो तोहरानी लीडरशिप माने नहीं कि एमपी एमएलए लीडरशिप माने कि नेतृत्व करता लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोहित शर्मा को लोग लीडर कहते थे कि वो नेता है क्या क्रिकेट टीम का लीडर है क्या लीडर माने नहीं कि जे एमपी एमएलए हकते लीडर माने जे अगुवाई करे तो से जन्य आमी सबाके सुधाइছি कि এই যে সময় আছে এই লিডারশিপ নির্মাণের সময় বটে সবাইকে নিজের নয় নিজের সমাজের জন্য নিজের ভাবি পিঢ়ির জন্য নিজের হকের জন্য নিজের অধিকারের জন্য আজ সবাইকে একজুট হয়ে নিয়ে আন্দোলন সংঘর্ষের যে রাস্তা আছে ওকে চুনতে হবে ঠিক আছে বেশি সময় ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें भी यहाँ से सफर करना है आप अच्छे से रहे सबाई भालो करे থাকবে সবাই মিলে মিশে নিয়ে রইবে এইটা আমাদের আমাদের ইচ্ছা আছে আমাদের মনোকামনা কি সবাই আপনি ভালো করে থাকবে সবাই একজোট থাকবে আর সবাই মিলে মিশে থাকবে এটাই আমাদের কামনা আছে আর এটাই আমাদের আপনাকে এটা আমাদের সন্দেশ ঠিক আছে আমি অত দূরলে আসেছে আমি পারাসনাথ পাহাড়ের গোড়ালে আসেছে তো টুকু আমি যে सुधियाली আমি যে আপনাকে मैंने जो आपको कहा तो कम से कम थोड़ा सा हमारी बात का मान कर दीजिएगा आप लोग अच्छे से मिलजुल के रहिए हमारी यही आपको शुभकामनाएं हैं ठीक है ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी अच्छे से रहे आप मुस्कुराते हुए रहें गीत गाते हुए रहें क्योंकि हमारी संस्कृति में गीत और संगीत का एक स्थान है मांदर की थाप का पहचान है तो गीत संगीत के साथ झूमर के साथ उसमें भी रहें और एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहें हमारे झारखंड निर्माण के प्रमुख नेता विनोद बिहारी महतो विनोद बाबू जिनको हम कहते हैं वो जीवन भर वही बोले पढ़ो और लड़ो पढ़िए अपनी परंपराओं को अपने पूर्वजों के विरासत को इतिहास को आधुनिक चीजों को भी और लड़िए फाइट करिए तो इसलिए कहेंगे कि समाज को भी लेके चलना है अपनी संस्कृति को भी बचाना है लेकिन ऐसा नहीं कि आप मॉडर्निटी से नाता तोड़ दें कल्चर और मॉडर्निटी दोनों को लेके चलना है क्योंकि कल्चर अगर हमारा 2500 साल पहले का है 2.5 लाख साल पहले का है चाहे 10,000 साल पहले का है तो आप अगर कल्चर के पीछे जाए और मॉडर्निटी के साथ छोड़ दें तो फिर भी आपको आधुनिकता को भी लेके चलना होगा क्योंकि आप जो पहने हैं जींस ये आधुनिकता है आपके हाथ में जो घड़ी है वो भी आधुनिकता है आपके पास जो मोबाइल फोन है ये भी आधुनिकता है तो कल्चर तो लेके रखना भी है लेकिन ऐसा नहीं कि हम आधुनिकता से पीछे हो जाए हम मॉडर्निटी से पीछे छूट जाए यह भी नहीं होना चाहिए हमको आधुनिकता के साथ भी चलना होगा इसलिए जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए और आज एक अंत में आपको इतना जरूर कहेंगे पढ़ाई लिखाई इसलिए कहेंगे क्योंकि आज हमारा एजुकेशन ही है जो हमको एमएलए बनाया है अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम अपना जो चूंकि लोगों ने हमें अगर वोट दिया तो उसमें इंपॉर्टेंट था मेरा भाषण
जब हम भाषण देने जाते थे तो लोग अगर रास्ते में भी गुजरते थे तो खड़े होकर सुनते थे और सुनने के बाद बोलते थे कि एक बार इस लड़का को हम लोग मौका देंगे। वो भाषण मेरे पास इसलिए आया क्योंकि हम पढ़े लिखे। और आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको तो अपना घर का स्थिति बताए, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब मेरा उम्र 1.5-2 साल था मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। जब मेरा उम्र मात्र 1.5-2 साल था मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावकों, मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। और उसी साल मात्र 2 महीना पहले मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। और उससे भी दुख का बात क्या है मालूम है कि मेरा छोटा भाई मेरी माँ की कोख में था। यानी मेरे पिताजी के मरने के 4 महीना के बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था। सोच के देखिए हम किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कितनी विकट परिस्थितियों से हम यहाँ तक का सफर तय किए हैं। यही नहीं आपको बताना चाहेंगे, हम कहते हैं कि लगभग 20 साल का ऐसा समय था जब हमने अपनी माँ को लोगों से सुना और कभी देखा, चूंकि बड़ा हमें तो देखे कि अपने हाथों से गैता से साबल से जो आफर गाड़ी बोलते हैं, अपनी की बोले बिहीन आफर की बोले नहीं सागर गाड़ी ना, जैसे धान लगाने से पहले हम लोग पहले लगाते हैं ना मोय, धान को पूरा खेत में बाद में लगाते हैं, पहले एगो स्पेशल कोना में लगाते हैं, बिहीन लगाते हैं, बिहीन धान। तो हमारी माँ हाथ से अपना मिट्टी को कोड़ती थी और उसमें बिहीन धान लगाती थी। क्यों मालूम है ना, हमारे हम लोग ही कहते हैं ना कि जय घारे मरद ना से घारे बरद कहा। तो 20 साल हमारा दादाजी पिताजी दोनों एक साथ मर गए हैं, तो बरद कौन नारेगा भाई? हमारी दादी तो बरद नारेगी नहीं, हमारी माँ तो बरद नारेगी नहीं, कड़ा तो चलाएगी नहीं। हमारे चाचा भी हैं, मेरे सगे चाचा है, आपको सुन के और दुख होगा, जन्म से उनका दोनों आंख नहीं है। हमारे सगे चाचा है, आज जिंदा है, उनका शादी नहीं हुआ है, इसीलिए शादी नहीं हुआ है कि जन्म से दोनों आंख नहीं है। यानी सोच सकते हैं 20 साल मेरे परिवार में जो कहावत है हम लोग बोलते हैं कि जय घारे बरद ना, जय घारे मरद ना, से घारे बरद ना, हम उस परिवार से आए हैं। दादाजी का डेथ हुआ 1 ही साल, पिताजी का डेथ हुआ 1 ही साल, और जब पिताजी का डेथ हुआ मेरा भाई माँ की पेट में था, मेरा चाचा भी जो है अपना चाचा, उसका दोनों आंख जन्म से नहीं है, और हम उस परिवार से आए और आज एमएलए ही नहीं बने हैं, झारखंड की राजनीति में भूचाल ला के रख दिया। उसका मेन रीजन था मेरा एजुकेशन। और शायद झारखंड, अब पता नहीं, हिंदुस्तान की बात हम नहीं करेंगे, पूरे झारखंड के इतिहास का हम पहला विधायक हैं जो कॉलेज से असेंबली गया है। कॉलेज से असेंबली कोई नहीं गया है, कोई भी रहे पढ़ाई छूटता है तब नेतागिरी करता है फिर विधायक बनता है। आपको जानकारी दे दे, हम अभी भी स्कॉलर है, स्टूडेंट है, और नवंबर महीना में हमको अपना प्री सबमिशन करना है पीएचडी का। करेंट स्टूडेंट, आई एम ए करेंट स्टूडेंट, कोई बैक नहीं, और कोई बीच में 2 साल का गैप नहीं, कंटिन्यू। तो इसलिए क्योंकि हम पढ़े और पढ़ते पढ़ते जितना चीजों को सीखे उसको जनता के बीच ले जाके रखे अपने भाषण में। जनता ने आज हमको एमएलए ही नहीं बनाया है, हम लोग को लगभग पूरे राज्य में 7% वोट दिया है, और लगभग 18 सीटों में हम लोग 30, 25, 40, 45, 60, 70 हजार वोट लेके आए हैं। इसीलिए लोग हमें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इससे पहले पॉलिटिक्स से मतलब क्या था कि किस नेता का चर्चा होता था? जो गले में सोना का चेन पहनता था, जो बढ़िया जूता, बढ़िया कुर्ता पजामा खलता पहनता था, जो बढ़िया चश्मा पहनता था। देखिए नेताजी, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक लड़का जो विधायक बना है जो नंगा पांव विधानसभा घुसता है, मीडिया को कवर करना पड़ता, मीडिया को कवर करना पड़ता, सोना का चेन पहनने वालों को फोटो आता था। देखिए विधायक जी ऐसे है, उनको अभी लगता है साला गरीब आदमी कैसे विधायक बन गया भाई। पहली बार कोई नंगा विधानसभा जाने वाला को लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए आपको हमारा यही संदेश होगा, पढ़ाई लिखाई आप लोग भी अच्छे से करिए और खूब आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। और निश्चय ही मेरे दिल में वो मलाल हमेशा रहता है कि आप भी आज बृहद झारखंड अगर हमारा मिला होता तो आप सभी झारखंड के पार्ट होते, और निश्चय ही आने वाला दिन ये आवाज भी बुलंद होगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा सामाजिक आंदोलन है उस मांग के लिए हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जोहार, जय गराम, जोहार जंगल महल। कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी भाषा संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए, हम लड़ेंगे साथी प्रकृति को सजाने के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं। जोहार, जय गराम, सब अच्छे से रहिएगा। मायरा मासीरा काकिरात আপনি কে বিশেষ জোহার, ভালো করে তো আপনি যাবি, আপনার বাড়ি ভালো করে যাবি এই সন্ধ্যার বেলা বটে। সবাইকে জোহার, জয় গরম, জয় গরম। টাইগার জয়রাম মাধব জিত, টাইগার জয়রাম মাধব জিত।